لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا مستدع اور سنانے سے قبل بارگاہ رسالت میں آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی اپنی رضا کے درام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہو چکی ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ماہ مبارک ماہ شعبان جلوہ افروز ہو چکا ہے، جس کی بہت ساری برکتیں حدیث شریف میں بھی ملتی ہیں اور قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہیں. آنے والی جو تاریخ 28 مارچ جو ہوگی، دن اتوار ہوگا، اس رات جو رات ہوگی اس کو شب برات کے نام سے ہم لوگ جانتے اور مانتے ہیں. یعنی 15ویں شعبان اتوار کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہی رات ہوگی شب برات کی، جس میں ہر سال ہم عبادت و ریاضت اور جو کچھ بھی اللہ توفیق دیتا ہے اچھے کام ہم کرتے ہیں. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین 25ویں پارے میں سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. قسم ہے اس روشن کتاب کی یعنی کلام مقدس کی، ہم نے اس کو یعنی کلام پاک کو مبارک راتوں میں نازل فرمایا. انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں عذاب آخرت کا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں اللہ رب العالمین ہر حکمت والا کام اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے. ان آیات کریمہ سے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ شعبان اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنی اہمیت اور برکت والا مہینہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا رمضان کا مہینہ ہوگا وہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. حالانکہ سب مہینے اللہ نے بنائے، سب دن اللہ نے بنائے، لیکن مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. جب بھی ماہ شعبان آتا تھا تو اللہ کے رسول اس مہینے میں کثرت سے عبادت میں لگ جاتے تھے اور بہت زیادہ روزہ اس مہینے میں آپ رکھتے تھے. ماہ رمضان کو چھوڑ کر کے سال میں کبھی بھی کسی مہینے میں ہمارے آقا اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا روزہ ماہ شعبان میں ہمارے آقا رکھتے تھے. اب اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، جس میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اچانک ہی 11 مہینے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم روزے سے ہوں گے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلا دن ہم پہ
भारी पड़ जाता है, गिरा हो जाता है। क्योंकि अचानक खाने पीने पे ब्रेक लग जाती है और भी बहुत सारे बुराइयों से हम रुक जाते हैं। तो ये बहरहाल इंसान के लिए एक भारीपन का माहौल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माह रमजान के इस्तकबाल के लिए, उसकी ताज़ीम में, उसकी तैयारी में मैं शाबान ही से रोज़ा रखना शुरू कर देता हूँ, ताकि रमजान का रोज़ा रखने पर मेरे जिस्म पर कोई भारीपन ना हो, मुझे कोई गिरा का माहौल मेरे ऊपर ना पैदा होने पाए। तो माह शाबान बहुत ही प्यारा महीना है। इसमें कसरत से नवाफिल, इबादत और रोज़ा रखने का हुक्म हमें दिया गया है। अल्लाह का करम है कि उसने हमें एक शब ऐसी अता फरमाई, 15वीं शब, जिसको हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं। शब बारात का माना होता है आज़ादी की रात, बख्शिश की रात, नजात देने वाली रात। क्योंकि इस रात मामला ये होता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इस रात जो भी मुसलमान रात भर अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु कब्र की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदे को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। अब ये कबीले बनु अरब में एक कबीला था कल्ब के नाम से, उसके पास बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में बकरियां थी। हम और आप एक बकरी के बदन पे कितना बाल है शुमार नहीं कर सकते, तो अगर हजारों बकरियों के बाल हमें गिनने के लिए कह दिए जाए तो बहरहाल ये मुहाल है, ये मुमकिन नहीं। तो अल्लाह के बताने का मकसद ये है कि जिस तरीके से हजारों बकरियों के बदन पर बेशुमार बेहिसाब बाल होते हैं, कोई उसको गिन नहीं सकता है, तो ऐसे ही आज मेरी रहमत इतनी ज्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है कि इस रात जो भी बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर ले और रात भर अल्लाह की इबादत कर ले तो अल्लाह उससे भी ज्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। तो ये सब कुछ नसीबी की बात है, अल्लाह का करम है कि ऐसे मौके हमको मिलते रहते हैं। अब जो बंदा इसमें अल्लाह की इबादत कर ले वो खुश नसीब कहलाता है, और जो ऐसे मौकों पे भी अल्लाह की बारगाह में फर्क करके ना आए वो बदनसीब कहलाता है। इसीलिए पहले से बातें बताई जाती हैं ताकि आने वाले दिनों में खूब शौक के साथ, जज्बे के साथ तवज्जो दी जाए और अल्लाह की बारगाह में जो भी इनाम मिलने वाला है, उसकी जो रहमतें मिलने वाली है, उसके हिस्सेदार नहीं बनाए। 15वीं शब आने से पहले हमें बहुत सारी चीजों की तैयारियां करना है ताकि हम अल्लाह के नेमत के, अल्लाह के हिस्सेदार हो जाएं और अल्लाह के नेमतों के हिस्सेदार हो जाएं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में अल्लाह हर मामला फरिश्तों के हवाले कर देता है। यानी 15वीं शब जब आती है उस रात से लेकर आने वाले आइंदा एक साल शाबान की रात तक किसको कब मरना है, किसको रोजी कितना मिलना है, किसका और मामला क्या होना है, सारी लिस्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन बना करके उसी रात में फरिश्तों के हवाले कर देता है। अब हम और आप ये होते हैं कि उसके बाद से बहुत सारे लोग अपने दुनियावी काम में लगे होते हैं, हालांकि उनका नाम मरने वालों की लिस्ट में शामिल हो चुका होता है। हम और आप भाग दौड़ करते हैं, हालांकि उसका रिस्क कम हो चुका होता है। तो बहुत सारे मामलात जो हमारी जिंदगी पर मुरतब होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रात सारे मामलात फरिश्तों के हवाले कर देता है। अब करने के बाद ना तो उसमें कोई कमी होगी, ना ज्यादती हो सकती है, ना कोई बदलाव हो सकता है। हाँ, उससे पहले हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह की इबादत में रात भर मशगूल हो जाए। तो ये एक मुमकिन काम है कि तुलूए फजर से पहले जब अल्लाह फरिश्तों के हवाले लिस्ट करने जाएगा, उससे पहले हमारा नसीब अच्छा जरूर हो सकता है। हवाले करने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो सारी चीजें अल्लाह ने हमें वाज़ेह तौर पर बता दी है। अब लेना नहीं लेना हमारे नसीब की बात है, हमारे अपनी मर्जी के मुताबिक है। तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक साल आने वाला जो हमारा होता है उसका फैसला फरमा देता है, उसको हमारे हक में मुकद्दर फरमा देता है। अब हम अगर चाहें तो अल्लाह की रहमतें लूटें और ना चाहें तो कोई बात नहीं।
उस रात में तौबा करने वाले का मकाम इतना बड़ा होता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से इस गुनाह से तौबा कर लेता है और पूरी जिंदगी कोशिश करे कि ये गुनाह दोबारा ना होने पाए जिससे मैंने तौबा की है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो इस तरीके से गुनाह करता है तो अत्ताई को मेरा ज़म्बे कमल्ला ज़म्बला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे जुड़ जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही ना। जिस माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उसके नामे आमाल में गुनाह कोई भी नहीं होता, तो सच्ची तौबा करने वाले को अल्लाह ऐसे ही धो देता है, गुनाहों से पाक साफ कर देता है कि गोया कि उसके नामे आमाल में कोई गुनाह बचा नहीं है। एक वाक़े से मैं आपको बात समझा दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी था, वो ऊंट पर सवार होकर के कहीं जा रहा था, खाने पीने का सामान ऊंट पे लाद दिया और जब जंगल में पहुंचा तो अचानक सोचा उसने कि थोड़ा सा आराम कर ले, धूप है, जब शाम हो जाएगी मौसम ठंडा हो जाएगा फिर मैं अपना सफर आगे बढ़ाऊंगा। उसने पेड़ का छांव देखा और ऊंट को खड़ा करके वहीं पर आराम करने लगा। अचानक उसकी आंख लग गई और आंख लगने के बाद जब कुछ देर के बाद आंख खोली तो क्या देखता है कि ना तो उसका ऊंट है ना ही उसका सामान है। तो जो आदमी मुसाफिर हो और सफर की हालत में जंगल में उसके साथ ऐसा मामला पेश आ जाए तो जाहिर सी बात है वो परेशान हो जाता है, बेचारा लाचार हो जाता है, क्योंकि कहीं जा नहीं सकता, किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकता, सारा मामला उसका बेकार हो जाता है, सीधी सीधी उसकी मौत हो जाती है। अब वो परेशान कि ना मेरा ऊँट है ना ही मेरा साजो सामान है, मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर उधर भागा, तलाश किया, दौड़ा धूपा, काम नहीं बना, फिर आकर के उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। फिर थका मारा था, अचानक नींद लग गई और थोड़ी देर के बाद जब फिर उसकी आँख खोली तो क्या देखता है कि ऊँट भी मौजूद है, सारा सामान भी मौजूद है। तो अब जाहिर सी बात है फिर ऊँट भी आ गया, सामान भी आ गया, तो वो आदमी खुश होगा कि नहीं खुश होगा। तो वो खुशी से इतना पागल हो गया, इतना मस्त हो गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने इस तरीके से लगा कि है अल्लाह तो मेरा बंदा है, मैं तेरा बंदा। ये कुफरिया कलमा, अल्लाह हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं, लेकिन उसने खुशी में मारे खुशी के इतना पागल हो गया, मस्त हो गया कि वो ये कह बैठा है अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा बंदा। तो आका अलैहिस्सलाम ये बात अपने सहाबा से बयान कर रहे थे कि जब इंसान इतना खुश हो गया कि अपने रब को बंदा कह दिया, अपने आप को रब कह बैठा, तो गोया कि इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो अल्लाह के रसूल अब आगे फरमाते हैं कि जब इंसान का सामान मिल गया तो इतना खुश हो गया, और इससे ज्यादा खुश हमारा अल्लाह उस वक्त होता है जब उसका बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। उससे ज्यादा खुश अल्लाह हो जाता है कि आज मेरा बंदा मेरे चौखट पे आया है, मेरी बारगाह में आया है, मेरे दरवाजे मेरे घर पे आया है, आज वो सच्चे दिल से तौबा कर रहा है, तो उस इंसान से ज्यादा अल्लाह को खुशी नसीब होती है कि आज मेरे बंदे ने तौबा कर। ये शब बारात शब तौबा भी है, शब मग़फ़िरत भी है, शब बरात भी है। इसीलिए इसका नाम शब बरात रख दिया गया कि ये जहन्नम से आज़ादी अता करती है, अज़ाब आखिरत से लोगों को आज़ादी का परवाना अता करती है। बशर्त ये है कि इस रात को हम अच्छे कामों में गुजारें, अल्लाह की इबादत में गुजारें, ज़िक्र तिलावत में गुजारें, तौबा और इस्तिग़फ़ार में गुजारें। 15वीं शब बड़ी मुबारक रात है। आप कुरान उठा करके देखें तो जैसे ही ये रात शुरू होती है, यानी गुरूब आफ़ताब से लेकर और तुलूए फजर तक, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। यानी जो आसमान हमको नजर आता है ये आसमान दुनिया कहलाता है, यानी दुनिया के हिसाब से पहला आसमान। तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अर्श आज़म को छोड़ करके, लामकाम को छोड़ करके आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, तजल्ली फरमाता है। क्यों फरमाता है? गुरूब आफ़ताब से लेकर के तुलूए फजर तक, यानी पूरी रात अल्लाह अपनी सदा बुलंद करता है। अलामा मुस्तग़फ़िर फ़अग़फ़िर लह, अला मुस्तरज़िक़ फ़अशक़ा, अला मुक़्तदिर फ़अआफ़ियहु, अला कज़ा अला कज़ा। यानी है कोई बख्शिश का तलबगार हूँ, वैसे गुनाहों को माफ कर दूँ,
हर कोई रिस्क का तलबगार कि वो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, हर कोई बीमार में मुब्तला इंसान को अपनी बीमारी की शिकायत करे और उसे शिफा अता करे। अला कज़ा यहाँ तक कि सुबह हो जाती है और अल्लाह अपने शान के मुताबिक वापस चला जाता है। इतना बड़ा इनाम अगर उसके बावजूद हमें समझ में ना आए तो ये हमारी बदनसीबी है, इसमें किसी और की कोताही नहीं। माह शाबान को बहुत सारी खुराफात भी हमारे मुआशरे में जन्म ले चुकी है। खासकर हमारे नौजवान उस रात इतना गलत काम करते हैं कि अफसोस होता है। बजाय ये कि इशा बाद से लेकर के फजर तक मस्जिदों में लोग भरे रहे इबादत और रियाजत की नीयत से, तो हमारे वहाँ माहौल ये बन चुका है कि फला बाजार पे चलो, फला बाजार पे चलो, कि चौचा चलो, दरगाह चलो, कहाँ चलो, और ये दरगाह के नाम पर घूमने का एक बहाना है। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, जिसको गलत लगे माफ कर दे। दरगाह के नाम पर हमारे नौजवानों को घूमने का बहाना चाहिए, कभी बाइक के जरिए, कभी ऑटो के जरिए, कभी साइकिल के जरिए, कभी पैदल गप्पे शप्पे मारते हुए दरगाह पहुंच जाते हैं और पूरी रात इसी लहू लईब में खेल कूद में गुजार देते हैं और अल्लाह के फरमान के मुताबिक वो अल्लाह की रहमतें लेने से महरूम हो जाते हैं। मज़ार पे जाना अच्छी बात है, मैं इसका मुनकर नहीं हूँ, लेकिन आप किसी और रात चले जाएं, पहले दिन चले जाएं, बाद वाले दिन चले जाएं, हर जुमेरात को चले जाएं, जब भी आपको वक्त मिले तब चले जाएं। आज की रात में मज़ार पे जाने का हुक्म नहीं है। हाँ, अगर जाने का हुक्म है तो कब्रिस्तान जाने का, जहाँ पे आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका मरा हुआ भाई आपका इंतजार कर रहा है, आपके अहले खाना वहाँ दफन है मट्टी के नीचे, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा आएगा सूरह यासीन पढ़ देगा, मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, मेरा बच्चा आएगा सूरह रहमान पढ़ देगा, मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो बहरहाल अगर अकल में बात समझ में आ जाए तो इस माह शाबान को हमें ये सबूत पेश करना है कि हम बिला वजह में मशगूल ना हो, खेल कूद में मशगूल ना हो, दरगाह किसी पहले दिन चले जाए, बाद वाले दिन चले जाए, और इस रात में अगर हमें जाना है तो कब्रिस्तान जाए, शांति के साथ जाए और उसके बाद आकर के अपनी मस्जिदों को हम आबाद करें। दूसरी खराबी ये है पटाखा फुलझड़ी वगैरह की। हालांकि अब तो बहुत कम हो गई है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो कम हो गई वो भी खत्म हो जाए, और इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर वालों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं। आज की रात पटाखाबाजी करने की, फुलझड़ी वगैरह जलाने की रात नहीं है। आज की रात तो ये है कि आज अगर हमने रात इबादत में गुजार ली तो हमारा आने वाला एक साल समझ सकता है, और अगर ये रात चली गई तो अगला साल हमारा कैसा आएगा हमें कुछ खबर नहीं। तो अल्लाह से डरें, रसूल से डरें और आखिरत के अज़ाब से डरें। अपने बच्चों को समझाएं, अपने घर वालों को समझाएं, नौजवान बच्चों को समझाएं। ये हर एक गार्जियन की, हर माँ बाप की, हर बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि ये जिम्मेदारी एहसास सबूत करे और बुराई और फितने को खत्म करे। कोई पटाखेबाजी ना होने पाए, कोई फुलझड़ी ना होने पाए, कोई तमाशे का काम ना होने पाए, और रातों को बिना वजह यहाँ वहाँ बैठ करके ना गुजारी जाए। तीसरी अहम बात करता हूँ जिसमें अक्सर अवाम मुलव्विस है, मुब्तला है गिरफ्तार, चाय और पान की दुकान। ये तो इतनी जहरीली चीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि रिस्क है, रोजी है, मैं किसी को बुरा नहीं करता, लेकिन हम सारे मुसलमान हैं। एक रात के लिए अगर ये एहतमाम कर लिया जाए कि आज दुकान भी बंद है, हम भी अल्लाह की इबादत करें, क्या सिर्फ हमारे लिए हुक्म है कि हम अल्लाह के घर में जाए? दुकानदारों के लिए नहीं है, वो भी तो मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुकानें खुलेंगी तो मक्खियां वहां पर बैठेंगी। मिठाई की दुकान जब खुलेगी तो मक्खी आएगी, चाय की दुकान खुलेगी, हर आदमी को बिलावटी पसंद आएगी। दिन भर में 50 चाय पीने के बावजूद ये 51 की तरफ लगी रहेगी, यार 51 पूरा कर लिया जाए। तो एक रात अल्लाह हमें देता है तो उसकी हम कदर करें। हम नहीं कदर करेंगे तो अल्लाह हमें भी कदर कर देगा। आज दुनिया का हाल है सब। तो ये रात हमें अल्लाह ने दिया है, आने वाली रात, इसकी हम पूरे तरीके से कदर करें, खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं, ताकि एक इस्लामी माहौल बने, हमारे अंदर इस्लामी शौक पैदा हो, इस्लामी जज्बा पैदा हो, कुरान और हदीस से मोहब्बत पैदा हो, ताकि हमारी दुनिया संभले, हमारी आखिरत संभले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो भी मैंने बयान किया उस पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।